Hello students, time to study mathematics. Open your mathematics textbook part 1 and everyone must open our page number 67. Today we are going to learn some application based example, that is the word problems. Okay, word problems of multiplication of 3 digits by 2 digit numbers and also 3 digit by 1 digit numbers. So let us first understand the examples from your textbook. So what we have here. So यहाँ पर हमें दिया है, देखो एग्जाम्पल नंबर 9. पायल सेव्स ₹175 पर मंथ फॉर अ ईयर. हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ द ईयर. तो देखो ईयर में कितने महीने होते हैं, यस 12. तो यहाँ पर हमें उसकी ज़रूरत होगी. देखो फिर सॉल्यूशन किस तरह से किया है. लेट अस लर्न द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन अमाउंट सेव बाय पायल पर मंथ is ₹175. Number of months in a year is the 12. तो total money saved in a year is equal to 175 multiplied by 12. Let us do here multiplication properly. Yes, यहाँ पर देखो नंबर लिख दे और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट है. देखो 2 5s are 10, so 0 here and 1 goes to the carry forward. 2 7s are 14 plus 1 is the 15. Then again 1 goes to the carry forward. 2 1s are 1 plus 1, that is the 3. So here our answer is the 315. Now as we know that यहाँ पर एक लगाना है हमें 0. Then multiply with the number 1 to all numbers. 1 5s are 5, 1 7s are 7 and 1 1s are 1. Now here they made addition. Okay, 0 plus 0 is the 0, 5 plus 5 is the 10, so 0 here and 1 goes to the carry forward. 3 plus 1 is the 4 and 7 plus 4 is again 11. Okay students, so 7 plus 3 10 and that 1 is the 11. 1 here and then 1 goes to the carry forward. Then 1 plus 1 is the 2. So what is our answer? Our answer is the 2100. So here they return the answer properly, that is the therefore Payal has ₹2100 at the end of the year. ओके स्टूडेंट्स, सो जब भी हमें ऐसे सवाल आ जाएंगे तो हमें क्या करना है, अच्छे से किस नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है. यहाँ पर जैसे यहाँ पर ईयर दिया है और पर मंथ उसका सेविंग चल रहा था, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ा कि ईयर के कितने महीने थे वो निकालने पड़े. कितने महीने मंथ्स थे, 12. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट अस लर्न नेक्स्ट एग्जाम्पल on the page number 68. Okay students, so what we have asked in this example, yes, example 10, Rohan ran 350 meter every day for a week. How many meters did he run in that week? तो देखो 1 वीक में कितने डेज थे, 7 डेज. 1 वीक इज इक्वल टू होते हैं हमारे 7 डेज. तो यहाँ पर देखो 350 मीटर हो हर दिन दौड़ता है. हर दिन कितना दौड़ता है, 315 मीटर. सो डिस्टेंस रन बाय रोहन इन अ डे, ये कितना हुआ हमारा 315 मीटर. डिस्टेंस ही रैन इन अ वीक, तो एक वीक में कितना दौड़ा वो, 315 मल्टीप्लाई बाय 7. तो मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पर. लेट अस डू मल्टीप्लिकेशन इन द बॉक्सेस. ओके, 7 5s are 35, so 5 here and 3 goes to the carry forward. 7 1s are 7 and plus 3 is the 10, so 0 here and 1 again goes to the carry forward. 7 3s are 21 and that 1 is the 22, so answer is the 2205 meter. Okay, so distance he ran in a week is the 315 multiplied by 7 is equal to 2205 meter. So Rohan covered a total distance of 2205 meter in 1 week. That is our answer of that question. Okay students, similarly we can solve one more example. ऐसा एक एग्जाम्पल देखते हैं और किस तरह से उसके सोल्यूशन लिखना है वो देखते हैं. चलो, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है कि वर्ड प्रॉब्लम में राहुल अर्न्स ₹342 ईच डे. हाउ मच मनी विल ही अर्न इन 31 डेज. तो यहाँ पर राहुल हर दिन कितना कमाता है, 342. तो अगर 31 डेज वो ऐसे ही काम करता रहेगा तो उसके पास कितने पैसे होंगे,
So let us write down the solution here. We know that how to write a solution. So solution यहाँ पर लिखना है, मैंने यहाँ पर पेन से लिखा है, but all students must use pencils. Okay students. So he earn each day कितना अर्न करता है वो? यस, ₹342. ओके, सो he will earn in 31 days, that is equal to क्या होगा हमारा? यस, 342 मल्टीप्लाई बाय 31 होगा. लेट अस डू दैट मल्टीप्लिकेशन इन अ टेबल फॉर्मेट. तो हमें टेबल फॉर्मेट में पता है कितने नंबर से 1 2 3 4 5. तो यहाँ पर जितने नंबर से उतने क्या करने हमें ये बनाने. चलो यहाँ से करता हूँ हमें 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस और 10,000 प्लेस कर दिया मैंने. 1 और 2 रखने हमें ब्लैंक. यहाँ पर हो गया हमारा नंबर 342 मल्टीप्लाई बाय 31 और यहाँ पर आएगा हमारा, इसके नीचे आएगा एडिशन के लिए. पहले हमें क्या करना है? 1 से मल्टीप्लाई करना है. तो 1 2 जार 2, 1 4 जार 4, 1 3 जार 3. नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई विद द नंबर 3. तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गया कंप्लीट. स्लाइटली काट लगा दी मैंने. 3 2 जार 6. लेकिन यहाँ पर हमें डेफिनेटली भूलना नहीं कि यहाँ पर क्या लगाना है? 0. तो ये बात बिल्कुल भी भूलनी नहीं है. 3 2 जार 6, 3 4 जार, ओके, 3 4 जार 12. So 2 here and 1 goes to the carry forward. 3 3 are 9, 9 plus 1 is the 10. So our answer is the 1026. ओके, ये किससे मल्टीप्लाई करने के बाद? 3 से. तो एडिशन हो गई, मल्टीप्लिकेशन हो गया हमारी कंप्लीट. चलो करते हैं अभी एडिशन. देखो 2 plus 0 is the 2, 4 plus 6 is the 10. So 0 goes here and 1 goes to the carry forward. स्लाइटली लिखता हूँ यहाँ पर नंबर. 3 plus 2 is the 5 and that 1 is the 6. Then 0 as it is and this 1 is as it is. So our answer is the 10,602. क्या हो, कितने हो गए उसके? 10,602. राहुल could earn or Rahul get money 10,602 rupees after 31 days. Okay students. So यहाँ पर हमें लिखना है वो जवाब 10,602. ओके, सो राहुल विल अर्न, यहाँ पर हम सेंटेंस में लिख सकते हैं राहुल विल अर्न ₹10,602. Okay, so like that students, you must have to solve the word problems. Some word problems I will give on your Google Classroom. That problems you must have to solve. Now let us learn some HOTS, higher order thinking skill examples. So here we have the more condition, like that here they say that we can find numbers that satisfy 2 or more conditions. Let us now see few examples. तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स अभी हमें क्या करने हैं? देखने हैं. Okay students, so here example 11 is there. Find two numbers whose sum is 13 and product is 6 more than 30. तो यहाँ पर हमें दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनकी एडिशन या सम कितनी होनी चाहिए? 13 होनी चाहिए, और जिनका मल्टीप्लिकेशन 6 मोर देन 30 होना चाहिए. 6 मोर देन 30 मतलब कितना? 30 में 6 ऐड करो. 30 प्लस 6 कितना है? 36. सो 36 उनका क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट होना चाहिए. सो यहाँ पर देखो जो दो कंडीशन ली है वो पहले यहाँ पर मेंशन की गई है. द टू कंडीशंस इन दिस प्रॉब्लम्स आर, फर्स्ट इज द सम ऑफ द नंबर्स इज 13 एंड सेकेंड कंडीशन दी यहाँ पर द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज 6 मोर देन 30. सो यहाँ पर कंडीशन अगर हम बी को लेते हैं तो यहाँ पर लिखा है देखो फ्रॉम कंडीशन बी 6 मोर देन 30 इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? 30 प्लस 6, दैट इज द 36. सो द प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज द 36. तो एक तो कंडीशन हमने कंप्लीट कर दी.
नाउ लेट अस फाइंड द टू नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 36। तो कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट 36 आता है? तो ऐसे बहुत सारे नंबर हैं। 36 1 जार 36 होता है, फिर 18 2 जार 36 होता है, फिर यहाँ पर 12 3 जार 36 होता है, और 4 9 जार भी क्या होता है 36 होता है, और 6 6 जार भी क्या होता है यहाँ पर 36 होता है। तो यहाँ पर ये सारे के सारे नंबर्स आपको लिखे हैं। देखो 36 होता है 1 इंटू 36, 36 होता है 2 इंटू 18 करके भी, 36 आता है 3 इंटू 12 करके भी, 36 आता है 4 इंटू 9 करके भी, और 36 आता है 6 इंटू 6 करके भी। तो यहाँ पर अगर ये सारे नंबर्स ले लेते, देखो 36 प्लस 1 तो हमारा कितना होगा 37 होगा, तो ये तो दो नंबर नहीं होंगे। 18 प्लस 2 होते हैं हमारे 20, तो ये भी दो नंबर्स नहीं होंगे। 12 प्लस 3 होते हैं हमारे 15, तो ये भी दो नंबर्स नहीं होंगे। और 4 प्लस 9 अगर इनको हम ऐड करते हैं तो हमें मिलते हैं एडिशन 13। तो वही तो हमें बताया है कि हुज सम इज़ द 13। तो ऐसे नंबर हमें ढूंढने हैं अगर, तो 4 प्लस 9 नंबर की सम आती है यहाँ पर 13, तो हमारे सही नंबर वही हो सकते हैं। Therefore the required numbers are 9 and 4. तो 9 and 4 are the two numbers that is required whenever we find out that two numbers sum is the 13 and product is the 6 more than 30, that is the 36. Okay students, similarly they solve the example 12, but here one more is there, difference is there. Here they said the differences, that means सब्ट्रैक्शन। अगर वो दो नंबर की सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमें कौन सा नंबर मिलता है ये वहाँ पर पता है। देखो यहाँ पर क्या पूछे सवाल में, फाइंड टू नंबर्स हुज डिफरेंस इज 1 एंड प्रोडक्ट इज 2 मोर देन 40। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, देखो कि जो दो नंबर्स है उनका एक का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है उन दो नंबर्स का 1 चाहिए, और मतलब और प्रोडक्ट कितना चाहिए 2 मोर देन 40। तो सिमिलरली 2 मोर देन 40 मतलब 40 में तो 2 मिलाने हैं। तो यहाँ पर देखो कंडीशन लिखी है, द डिफरेंस ऑफ द नंबर इज द 1, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज 2 मोर देन 40 विच इज 42। ओके, नाउ लेट अस फाइंड द टू नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 42 एंड डिफरेंस इज 1। तो ऐसे अगर हम नंबर ढूंढते तो बहुत सारे नंबर आएंगे 42 के। 42 1 जार 42 आता है, लेकिन 42 में से 1 गए तो 41 आता है, तो ये भी नंबर नहीं होगा। 21 2 जार 42 होता है, तो ये भी नहीं नंबर होगा। 14 3 जार भी 42 होता है, तो यहाँ पर ये नंबर, लेकिन इसका डिफरेंस कितना आता है, डेफिनेटली 14 और 3 का डिफरेंस तो 1 नहीं आता है, तो ये भी नंबर नहीं हो गए। बट 7 6 जार भी 42 होता है, लेकिन इनका डिफरेंस हमेशा हमें क्या मिल सकता है, 1 मिल सकता है। सो द नंबर्स हुज डिफरेंस इज 1 आर 7 एंड द 6। कौन से ऐसे नंबर हैं, 7 एंड 6। Therefore the required numbers are 7 and 6. Okay students, similarly let us solve some examples in your mathematics notebook. Okay, find two numbers whose sum is 16 and product is 5 more than 50. तो ऐसे हमें दो नंबर ढूंढने जिसका प्रोडक्ट कितना है 5 मोर देन 50 है, और उसकी सम कितनी है 16 होनी चाहिए। सम कितनी चाहिए 16 होनी चाहिए। तो यहाँ पर चलो सॉल्यूशन में पहले दो कंडीशन लिखते हैं। तो कंडीशन तो लिख कर लेते हैं यहाँ पर, टू कंडीशन इन प्रॉब्लम, टू कंडीशंस इन प्रॉब्लम। ओके, तो पहली वाली कंडीशन कौन सी यहाँ पर हमारी, यस। कंडीशन ये है the sum of the number is कितनी दी हमें, यस 16 दी है, एंड बी दिया है हमें द प्रोडक्ट इज 5 मोर देन 50 दिया है। 5 मोर देन 50 मतलब क्या होता है, सो इट इज 50 प्लस 5 दैट इज द कितना आएगा हमारा फिर 55। कौन सा नंबर आ गया यहाँ पर 55। तो ऐसे अगर नंबर हम देखते हैं तो देखो यहाँ पर कौन सा नंबर आता है ऐसे, यस 55 के प्रोडक्ट का नंबर होता है हमारा 11
मल्टीप्लाई बाय 5 करते तो हमें मिल जाता है नंबर 55। इसी की तरह 5 इंटू 11 किया तो भी हमें नंबर मिलता है 55। तो यहाँ पर हमें मिलते हैं दो नंबर्स, दैट इज 11 एंड 50, और 11 और 50, 11 और 5, 11 एंड द 5। और अगर 11 एंड 5 की हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, तो हमें देखो क्या मिलता है नंबर, यस हमें मिलता है नंबर 16। सो आवर आंसर इज द, सो रिक्वायर्ड टू नंबर्स आर 11 एंड 5। कौन से दो नंबर से हमारे, 11 और 5। इन द सिमिलर वे वी डू हैव द एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड टू नंबर हुज डिफरेंस इज द 3 एंड द प्रोडक्ट इज द 8 मोर देन 20। तो यहाँ पर अभी ऐसे नंबर ढूंढना है इसके डिफरेंस कितनी चाहिए, 3। तो यहाँ पर भी हमें दो कंडीशन दी है कि डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है हमारा 3, और प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट 8 मोर देन 20, दैट इज द 28 होगा हमारा। ओके स्टूडेंट्स, सो टू कंडीशंस आर, फर्स्ट हम लिखते हैं टू कंडीशंस आर। कौन कौन सी कंडीशन फिर यहाँ पर, फर्स्ट है द डिफरेंस ऑफ द नंबर, कितना दिया है डिफरेंस यहाँ पर, यस डिफरेंस दिया है यहाँ पर नंबर का 3, डिफरेंस कितना दिया है 3। एंड बी कंडीशन आ गया प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या आएंगे फिर हमारे, 8 मोर देन 20, 8 मोर देन 20, सो दैट इज प्रोडक्ट क्या आएगा आपका यहाँ पर, यस 20 प्लस 8 दैट इज द 28। क्या है प्रोडक्ट हमारा, 28 आ गया। ओके, नाउ फाइंड सच टाइप ऑफ नंबर। कैसे नंबर हम ढूंढेंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर आपको अगर 28 इंटू 1 किया तो भी मिलता है नंबर 28। अगेन अगर हमने किया कि 14 इंटू 2, तो ये यहाँ पर भी नंबर मिलता है हमें 28। ओके, और उसके साथ हमें और भी एक मिलता है कि 4 इंटू 7, तो ये भी करने के बाद हमें मिलता है कौन सा नंबर, 28। तो यहाँ पर लेकिन वो दो नंबर्स का डिफरेंस कितना चाहिए, 3 चाहिए। अगर हम 28 माइनस 1 करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, 27 आएगा। 14 माइनस 2 करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस आएगा आपका 12 आएगा, तो ये भी नंबर नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पर हमारा होता है कुछ 7 माइनस 4 किया, तो यहाँ पर आता है डिफरेंस 3। यस ना स्टूडेंट, बिकॉज 7 माइनस 4 क्या होता है हमारा, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू आता है हमारा 3। सो आवर आंसर इज द 4 एंड 7। सो रिक्वायर्ड, सो द रिक्वायर्ड, हम लिख सकते हैं आप रिक्वायर नंबर्स आर, कौन कौन से दो नंबर से फिर हमारे यहाँ पर 4 एंड 7। ओके स्टूडेंट्स, so similarly some examples I will send you on your Google Classroom group. You must have to watch out the video and also solve that all given examples in your mathematics notebooks. Okay students, bye bye for now, take care.